So hello and welcome everybody. Today we are going to do group 3. अब तक हम लोगों ने ग्रुप 1 और 2 कर लिया था, तो हम क्विकली ग्रुप 1 और 2 के एक्शंस और साउंड को रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी लोग प्लीज एक्शंस करें। रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने कैमरास को ऑन कर लें तो हम देख सकेंगे कि अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो। अदरवाइज हमने पिछले बार तो देख ही लिया था, आप सही ही कर रहे थे, बट फिर भी try to put your cameras on so that we can see and check the actions. साउंड के लिए अभी हमने म्यूट पे रखा है ताकि हमारा जो ये रिकॉर्डेड सेशन है ये विदाउट एनी केओस एंड टेक्निकल इशू अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद हम साउंड्स को स्टार्ट कर देंगे। सो विल जस्ट सी द एक्शंस टुडे। आपकी लिपसिंग से हमें साउंड पता चल जाएगा, डोंट वरी। सो विल स्टार्ट विथ SATIPN। तो हम ग्रुप 1 पे पहले ग्रुप 1 के जो सॉन्ग्स हैं उनको हम पहले करते हैं। S, S, A, 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 I, 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 I. Hmm. 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 Okay, so it's SATIPN. Now, E, E, E. Brr, brr, brr. Hmm. 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 D, 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 d. So here we have completed group 2 sounds and actions and you all are doing correct. बहुत बढ़िया कर। Thank you very much all of you doing along with me. अब देखेंगे ग्रुप 3। Let us start with group 3 sounds and story, action, song and jingle. Okay. So now let us start with group 3. GOULFB जैसा कि आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, GOULFB. नाउ G, this is the sound G. So the story says, yes, the story is visible. Okay. So the story is a family is at home. The sink is blocked and the water is having trouble going down the drain. Okay, in the kitchen, the sink is blocked. Okay, so it as it finally disappears, the water gurgles down the drain. When the choke is removed, then the water moves spirally. जब वो choke निकल जाता है सिंक का, तो ऐसे spirally गोल 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 घूम के जो है पानी जाता है। तो जब पानी नीचे जाता है ड्रेन से तो वो गर्गलिंग साउंड करता है, ग ग ग ग ग ग ग इस तरीके का साउंड आता है। सो दैट इज द साउंड फॉर जी। Okay, so what is the action? Spiral your hands down as if the water is going down the drain and say. So this is the sound and story and action for G. Okay, so you have to spiral your hands down as if the water is gurgling down the drain. Okay, listen to the song. Check out the sound and train. Go check out the sound and train. Go check out the sound and train. Okay, so this is the song and the action. Now next, O. Now for O, the story is a family is going to bed. मतलब family जो है वो सोने के लिए तैयार है because it's a night time. So the family is going to bed. Okay. The children are playing with light switch. बच्चे जो है light की switch से खेल रहे हैं. So they are turning off the light and on the light. They are turning off the light and on the light. Off the light and on the light. So this is the action. You have to pretend to flip the switch on
and flip the switch off. Flip the switch on and flip the switch off. Okay, and say oh, 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 because in on also you say oh. If in off also you say oh. So it's oh, 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 oh. So this is the sound and the action, and you have to pretend to flip the switch on and switch off. Flip the switch on, flip the switch off. बार बार बटन बंद चालू करना. So this is the story. Now what is the jingle? Now it's that the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Okay, listen to the song. Now next, U. For letter U, the story is, it's a rainy day. So बरसात का दिन है. The child is struggling to open the umbrella. बच्चा जो है बाहर निकलने के लिए अम्ब्रेला को ओपन कर रहा है, बार बार बटन को दबा रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा. फिर अचानक से अम्ब्रेला ओपन हो जाता है ऐसे, like this. So the suddenly the umbrella pops up. So you have to pretend that how the suddenly umbrella is popping up. So pretend to open the umbrella and say up, 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 up. So this is the sound. And the action, listen to the jingle. Now what is the jingle? Uh, uh, up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. Jollyphonics के जो jingles है ना, 1 या 2 lines के हैं. तो ऐसा आप बिल्कुल भी मन में ना लें कि अरे 42 साउंड्स 42 जिंगल्स कितने याद रखेंगे. बस आपको डेली उसको रीड कराना है. 2 या 3 लाइन की है, रीडिंग करा लो, या आप बच्चे से डेली बुलवा लो. आपके पास स्मार्ट टीवी है या स्मार्ट बोर्ड है, आप रेगुलरली उसमें लगाइए, या घर जाने से पहले और सुबह आने के पहले, जैसा भी आप सुबह आने के जस्ट बाद, जैसा भी आपको टाइम मिले, आप इसको लगाएं रेगुलरली, तो बच्चों को याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा. जैसे ही वो लेटर फ्लैश होता है, आपको उसके जिंगल्स याद हो जाएंगे. नर्सरी में बच्चों को अगर 42 साउंड के नहीं हो तो कम से कम A to Z के पूरे जिंगल्स के साथ और एक्शंस के साथ सिखाएं. So it is going to help. Now next is L. For letter L, the story is, a child has a big round lollipop. एक बच्चा है, उसके पास में एक अच्छा सा बड़ा सा राउंड लॉलीपॉप है. He licks the lollipop happily. और वो बड़े खुशी से उस लॉलीपॉप को लिक कर रहा है. Mm, 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 तो देखो, आपको क्या करना है, जीभ को बाहर निकाल के हम्म हम्म हम्म. Okay, so this is the sound and the action. Listen to the jingle. We lick our lollipops. We lick our lollipops. We lick our lollipops. चाहे दोनों हाथ से खा लो, चाहे एक हाथ से खा लो, है ना. So you have to pretend that you are holding the lollipop stick and then you are licking it. Mm. 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 Listen to the song. Oh. Now next is F.
For F, the story is some children are playing with an inflatable fish at the beach. एक बीच में जो inflatable fish है, inflatable fish मतलब fish है जिसको थोड़ा सा चोट लगा हुआ, ठीक है. So inflatable fish है. Suddenly it gets a hole and the air starts coming out. अचानक उसमें होल होता है और हवा जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे, उसको फूक रहे हैं. They are blowing the air from their mouth. So you have to do the action and let your hands sink together to deflate the fish. तो जो फिश है ना उसको आप डिफ्लेट कर रहे हो, जो इन्फ्लेटेबल है उसको डिफ्लेट कर रहे हो, ठीक है ना. जो उसका वो निकल गया है उसको आप दोबारा से दबाने का प्रयास कर रहे हो फूक फूक के. Okay, so this is the sound and the action. Listen to the song. My friends and I went to beach with my floating fish. It got a hole, the air came out. Okay, this is the jingle. So you have to slowly bring your hands together to mind the inflatable fish, deflating and say, listen to the jingle. Okay, now next, the last sound of group 3. Group 3 का last sound है B. Now what is the story? So a child is playing basketball. एक बच्चा basketball खेल रहा है. Sorry, baseball. The child is playing baseball and he hits the ball with a big bat. So you have to pretend that this is a bat and you're hitting a ball. Okay? So it's B, 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 B. Now see, what is the difference between baseball and cricket? In the baseball, it's not compulsory to give shots, big and high shots. You can just give a small shot. So that's why children outside India, they start cricket with baseball first, so that the ball is at the lowest and then they play. Now, whatever, see, now kids are enjoying in many places, kids are not starting with baseball. They're just starting directly with the cricket because cricket has become so famous as of now. So, but initially children used to start with baseball and then after that they used to start playing cricket, right? So they pretend this as a bat and then they are hitting the ball like this. B, 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 b. So you have to pretend to hit the bat with the ball saying b, b, b. Okay, so this is the sound and the action. Listen to the jingle. Bring your bat and bring your ball. B, b. Bring your bat and bring your ball to the park to play. So you have to pretend to hit the ball with the bat and say b, b, b. Listen to the jingle. Okay. So here we have completed with Jolly Phonics Group 3. Now we shall have an introduction to Group 4 and then if time permits, we'll start with Group 4 story action songs as well. अगर टाइम हुआ तो हम स्टोरी एक्शन सॉन्ग्स भी करेंगे, अदरवाइज ग्रुप 4 का एक इंट्रोडक्शन करेंगे बिकॉज ग्रुप 4 बहुत सारे राज लिए हुए हैं. आप जैसे मास्टर फोनिक्स ट्रेनर का ये कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 4 में ऐसा क्या नया है.
इससे पहले जो हम ये ग्रुप 3 देख रहे थे, उसका 1 2 3 का भी एक एक्टिविटी आपको अभी मैं कराऊंगी, और उसके बाद हम ग्रुप 4 का मेन इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, ना आई एम स्टॉपिंग दिस। फर्स्ट we'll सी group 3, group 1 2 3. See now, this is Jollyphonics 42 sound picture. This is the Jollyphonics chart. Okay. Now you can see all the 42 sounds here. आपको यहाँ पे पूरे 42 sounds दिख रहे हैं. Wait, I'll just zoom this. इधर गया zoom का बटन. अच्छा, it does from here. It's an image, that's why. Oh. Yeah, now it's okay. Hmm. So you can see 42 sounds here. ठीक है. Now what we'll do is I'm annotating this. अब देखिए यहाँ पर S T P N C K H R M D G L F B. काउंट करें इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. राइट. यहां पे हमने 13 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के सीख लिए. इजंट इट? तो इनके स्टोरी एक्शन सॉन्ग जिंगल हो गया. ठीक है. अगर हम इसको ABCD के साथ करते हैं तो ए. अच्छा, अब पहले वॉइस भी देख लेते हैं. आई जस्ट चेंज द कलर. Now, see, this is A, this is I, this is E, oh, sorry. This is E, this is O, and this is U. देखो यहीं पर है. ये एक ब्रिज बन गया. राइट. ये वॉल्स का ब्रिज इन कॉन्सोनेंट्स के बीच में है. ओके, व्हाई? बिकॉज विदाउट दीज वर्ड्स यू कैन नॉट मेक एनी वर्ड्स. आप बिना वर्ड्स के और वर्ड साउंड्स के वर्ड्स नहीं बना पाओ. राइट, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वॉवेल साउंड हियर. अब ये वॉवेल साउंड जो है, अच्छा, वॉवेल को अभी रिसेंट जो हमारा एडवांस इंग्लिश है इसमें वॉवेल को वॉल्स बोला जाता है. ठीक है. सो व्हाई डू वी कॉल दिस एज वॉल्स? बिकॉज डब्ल्यू का साउंड जो है उसमें श्वा लग जाता है. तो श्वा, बिकॉज डब्ल्यू इज ओ एंड डब्ल्यू इज ऑ, सो वी से वॉल्स. ओके, तो आ साउंड आता है जो आप आगे सीखेंगे. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज वॉल्स. ओके, तो आगे आप जब इसको ऑ साउंड सीखेंगे, इट्स एन ऑल्टरनेटिव साउंड ऑफ वॉल, तो फिर आपको उसमें आइडिया हो जाएगा. सो ये जो आपको मैंने अभी बताया, दीज आर द वॉवेल्स. तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 3 तक सिखा रहे हैं तो आप बच्चों को कितने साउंड सिखा रहे हैं? आप बच्चों को कितने साउंड सिखा रहे हैं? 18 साउंड्स, बिकॉज 3 ग्रुप 6 साउंड्स, राइट. उसमें आपने 13 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स सिखा दिए. अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू सी केयरफुली, लेटर J, letter Z, W, V, Y, and X. How many left? 1 2 3 4 5 6. Only 6 left. और एक हम ये Q को भी ले लेते हैं. हालांकि ये एक डिप्थोंग है, या डायग्राफ ले लो आप इसको, कि एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल का डायग्राफ है, बट इट्स एक्चुअली अ डिप्थोंग. इसका एक अलग साउंड आता है. सो ये ग्लाइडिंग है. कुआ, एक कुआ मतलब डिप्थोंग इज आर द ग्लाइडिंग साउंड्स एक्चुअली, जो हम आगे देखेंगे. सो अब यहाँ पर देखिए तो आपको टोटल ये जो 7 है, ये मिला के 26 लेटर साउंड्स होते हैं. ठीक.
सो अब जब हम 26 लेटर साउंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये ग्रुप 3 तक जितने भी लेटर्स आते हैं, दीज आर द लेटर साउंड्स विच गिव मैक्सिमम वर्ड वोकैबुलरी। वर्ड की लिस्ट अगर आप देखो तो इन लेटर्स के साउंड की ज्यादातर वर्ड्स बनते हैं, राइट। लेकिन जे, जे से काफी कम वोकैबुलरी बनती है। जेड, डब्ल्यू, वी, वाई, एक्स एंड क्यू, इनसे काफी कम वोकैबुलरी बनती है, बहुत वेरी रेयर, बहुत कम वर्ड्स बनते हैं इनसे। लेकिन इन लेटर साउंड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो ग्रुप 3 तक है। इसीलिए क्रिस्टोफर जॉली ने इस अरेंजमेंट में इन्हें सेट किया है ताकि मैक्सिमम लेटर साउंड्स, वॉवल्स, और 3 ग्रुप तक अगर आप सिखा रहे हो तो आपका कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स दोनों स्टार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ में आप सीबीसी स्ट्रिंग वर्ड सीरीज, राइमिंग वर्ड्स और मैक्सिमम वर्ड लिस्ट जो है आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है ना। सो आपके ग्रुप में है ना, और जो वर्ड लिस्ट है सभी ग्रुप की वो आज हम शेयर कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ग्रुप 3 तक अगर आप कराते हो बच्चों को तो प्रॉपर आप राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है। फिर अब देखिए, 3 ग्रुप तक आपने वॉवेल्स करा दिया, 3 ग्रुप तक आपने कॉन्सोनेंट्स करा दिया, अब आ जाते हैं ग्रुप 4 में। ठीक है। ग्रुप 4 में जाने से पहले ए, आई, ई, ओ, यू जो यहाँ लिख दिख रहा है, ग्राफीम है, जो मैंने आपको ग्राफीम और फोनीम के बारे में बताया है। सो लाइक ग्राफीम यानी जो चीज दिख रहा है, ठीक है। फोनीम यानी जो चीज सुनाई दे रहा है, हमने ये इंट्रोडक्टरी क्लास में ली है ना। तो अब जब हमको समझ में आया कि ग्राफीम यानी जो चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे AEIOU दिख रहा है, AIEOU ये दिख रहा है ना। बट हम इसको क्या बोल रहे हैं, अब तक हमने फोनिक्स में क्या सीखा, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं ए, ई, ए, ए, ओ, अ। ओके। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रॉपर साउंड। तो ग्रुप 3 तक हम बच्चों को पूरा वॉल का साउंड बता रहे थे। ठीक है। ए, पूरा मुंह खुलेगा। ए के लिए पूरा मुंह खुलेगा। ए, फिर आई के लिए ई, पूरे दांत दिखाना है, ई। और ई के लिए ए, ए। और ओ के लिए आ, आ। और यू के लिए अ। ओके। सो दिस इज द साउंड एंड द प्रॉपर वे ऑफ सेइंग द साउंड ऑफ वर्ड्स। अब ये ग्रुप 3 तक ध्यान रखेंगे। ग्रुप 3 तक ये जितने भी वॉवल के जो साउंड आप देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड, राइट। वी कॉल दिस एज शॉर्ट वॉवल साउंड। ठीक है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड होते हैं। लेकिन अब हम अगले ग्रुप में जब आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको AEI और ओ मिलेगा, यू नहीं मिल रहा, यू नीचे तरफ जा रहा है वो, देखो 7th ग्रुप में थर्ड लास्ट जो है दैट्स यू, वो उधर पे जा रहा है बिकॉज इट्स ग्लाइडिंग। ओके, यू इट्स ग्लाइडिंग, तो डिफ्थोंग के साथ में मैजिक ई के साथ में इसको डाल दिया गया। मैजिक ई हम आगे देखेंगे। सो इट्स AOIE और, है ना। तो अब इसको जे को अलग कर दें। अब यहां पर ये रूल है, प्लीज आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। द रूल इज when two vowels go walking, I'll just put the text in here with white color. Oh, sorry. Yeah, write the rule along with me. When two vowels go walking, the first does the talking, calls its name. ठीक है। ओ,
दिख रहा है क्या आप लोग? I don't know whether I can shift this or not. I think it's clear, this blue color. Is it clear? Can you see this? When two walls go walking, the first does the talking. Yeah, okay. Thank you, Nupur ma'am. So when two vowels go walking, the first does the talking, calls its name. जब दो vowels जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं. Now can you see here this A and I? This A and I. They both are, you know, this A and I, they both are walking together. ठीक है. तो अब A और I दोनों साथ में चल रहे हैं. तो दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं. ठीक है. दे आर टॉकिंग. सो व्हेन दे आर टॉकिंग, तो देखो जब दो लोग बात करते हैं ना, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो व्हेन आई एम टॉकिंग यू आर साइलेंट. ठीक है ना. जब हम किसी से भी बात करते हैं, तो जब हम एक से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो बोल रहा है, तो जो सुनने वाला होता है, द वन हु लिसन्स इज ऑलवेज साइलेंट. बट व्हेन बोथ आर टॉकिंग, व्हाट इज इट? इट इज अ गुड कम्युनिकेशन और इट्स अ फाइट? इट्स अ फाइट, राइट? दैट्स अ डिबेट. झगड़ा होता है जब एक बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, उसको सुन नहीं रहा है, तो देन इट्स अ फाइट, इट्स अ डिबेट. जब दो वावल्स एक साथ में वॉक कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला वावल है वो बात कर रहा है, द फर्स्ट डज द टॉकिंग. और क्या बोल रहे हैं? कॉल्स इट्स नेम. इन अवर इनिशियल क्लासेस आई हैव टोल्ड यू, इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज हैज नेम डिफरेंट एंड साउंड डिफरेंट. हर एक इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट लेटर्स सीरीज का जो अल्फाबेट लेटर्स का नेम है वो अलग है. लेटर्स नेम इज डिफरेंट एंड साउंड इज डिफरेंट, राइट? लेटर नेम इज डिफरेंट एंड लेटर साउंड इज डिफरेंट. ओके. सो जब हम लेटर नेम की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द लेटर इट्स डिफरेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द साउंड ऑफ द लेटर इट्स डिफरेंट. ठीक है. सो व्हेन टू वॉल्स गो वॉकिंग, जब दो वॉल्स एक साथ जा रहे हैं, वो पहला बात कर रहा है और जो दूसरा है वो सुन रहा है. ठीक है. सुनने वाला साइलेंट, चुप. ओके. तो पहला वॉवेल अपना नेम बोल रहा है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द साउंड? द साउंड विल बी ए. Why? Because the name of the first vowel is A. So it's saying its own name. वो अपना खुद का नेम बोल रहा है. So AI, इसका साउंड क्या होगा? A. Okay? I का साउंड नहीं आएगा because I is the listener. So when you are listening, you are silent. तो I letter is silent in group 4, the first diagram. ठीक है. ये वर्ल्ड डायग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाता है. So, so AI is world digraph और यहां पर A sound आएगा. Then अब जो it's a consonant we'll be seeing when we'll be doing this group. ठीक है. इस ग्रुप को करेंगे तब हम देखेंगे. अब O A का साउंड क्या आएगा? You have to say the name of the first letter. The name of the first letter is O. 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 Okay. Then I. Oh, sorry, I'm doing the actions now only. We'll be doing this tomorrow. E का क्या होगा? I. I. And then double E का क्या होगा? E. E. अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन होगा कि मैम ये R कैसे आया? सी, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ही ले लो, R, W and Y, they are actually half vowels. They are having very good friendship with the vowels. And R is a R controlled sound. R का साउंड यहाँ कंट्रोल्ड साउंड आ रहा है. जैसे हमने ऊपर R का साउंड बोला था, नहीं बोला, इट्स ओके. सो R कंट्रोल्स इट्स साउंड. यहां पर एक स्पेलिंग रूल आता है जिससे हम कहते हैं बॉसी आर. जब हम बच्चों को जॉलीफोनिक्स की पूरी सीरीज सिखाते हैं, तो वहां पर
यहां से बच्चों का मैजिक ई और बॉसी आर वाला स्पेलिंग रूल लगता है, जो हम जब अगले नेक्स्ट उसमें स्पेलिंग रूल सीखेंगे तब हम समझेंगे डिटेल में। बट इतना जान ले कि यहाँ से बॉसी आर के स्पेलिंग रूल्स सिखाए जाते हैं, इसीलिए ग्रुप 4 में यहाँ पे आर का इंट्रोडक्शन कर दिया, आर कंट्रोल्ड साउंड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और बोला गया, और ओके, इट्स और। तो जब हम इसको और बोल रहे हैं तो इट्स गिविंग अ राइम विद ई, और तो इसलिए यहाँ पे सेट किया है इसको नीचे, इसीलिए नहीं डाला, और इसीलिए यू को इधर नीचे डाल दिया है। सो राइमिंग के साथ सेट करने के लिए एक रीजन है। दूसरा रीजन बॉसी आर यहाँ पे बताने के लिए इसको डाला है। तीसरा रीजन, यहाँ पे सेकेंड लेटर का साउंड को या तो साइलेंट या तो कंट्रोल किया गया है। तो अब तक सेकेंड लेटर साउंड इज साइलेंट, यहाँ पे आर को कंट्रोल करके उसका साउंड दिया गया है, इट्स और changes the sound of the vowel and gets control itself. This is actually the rule of Bossier which we'll be seeing ahead. ठीक है, तो ये था पूरा ग्रुप 4 का इंट्रोडक्शन। ग्रुप 3 तक हम बच्चों को मैक्सिमम लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड सिखा सकते हैं, वॉवेल सिखा सकते हैं, पूरे वॉवेल साउंड सिखा सकते हैं, और हम लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ग्रुप 4 में जो आपको ए ओ आई ई दिख रहा है वो लॉन्ग वॉवेल्स है, राइट। और जो ग्रुप 3 तक जो वॉवेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं दैट इज शॉर्ट वॉवेल। मतलब शॉर्ट वॉवेल का साउंड कब बोलेंगे, जब लेटर का साउंड जो है वो अकेला आ रहा है, व्हेन यू सी ग्राफिकली लेटर सिंगल, okay, then you will take the short vowel sound. Short vowel sound is the phonic sound which we have just learned. ठीक है, long vowel sound is the name of the letter. Long vowel sound will always be in two. Vowel digraph होता है long vowel, दिखेगा दो बट साउंड आएगा उसके नेम का। सो ए ओ आई ई, और यू भी, जो यू 7th ग्रुप में नीचे आया है वो ए ई आई ओ यू। ओके, नाउ लास्ट इन द स्मॉल टिप, नाउ दिस इज अ होमवर्क टू यू ऑल, कि अब आप लोग एक होमवर्क करके आएंगे और ये मुझे कल बताएंगे कि वाई ए ई आई ओ यू are considered as vowel and why not other letters. See, English has 26 letters. English में 26 letters होते हैं, लेकिन क्यों ए ई आई ओ यू को ही चुना गया vowels के लिए, और क्यों इनको ही vowels डाला गया? So now this is a question and it's a curious question I have put in your mind. So now with curiosity, just find out. You can take help of any AI tools or you can take help of any notebook, book or anything. Okay, and then you can have an idea why A E I O U are called as vowels. ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। So with this, we will stop the session here for the day. Tomorrow we'll be doing group 4 story action songs and the practice from group 1 to group 4 as well, all together with all of you. Okay, and then within this week we'll try a level best to complete all the groups. इस वीक में हम पूरे ग्रुप्स कंप्लीट करके एंड देन वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग। ठीक है,